Assalamualaikum class. Today is 11th lecture of Islamic jurisprudence, and we will start a new topic that deals with the public and private rights of the individuals. So let's start with this topic. I will share my screen first. Today is our topic is public and private rights. And there are different table of contents, which means that this topic has been categorized into the different subtopics. First, we will start. I will start with the introduction, then meaning of the term right. Then we will study different types of rights. First, the public rights, and this public rights are again categorized into the different subtopics, different subtopics. Pure worship, next pure punishment, taxes, independence, liability, imperfect punishment, vacillating between worship and penalty. Then another type of rights, that is private rights, pure rights of individual, mixed rights of alignment, independent rights, dependent rights. Then another type is basic human rights, which are the following rights: the right to safety, freedom of religion, personal freedom, freedom of thought and expression, right to equality, right to basic needs, right to freedom of work. And in the end, I would like to conclude this topic. So let's start with this introduction. In Islam, the concept of human right is essentially based on the idea of human dignity and equality of mankind. Rights with regard to person of inheritance are principally classified by the Mohammedan jurist into the rights of Allah and rights of man. Basically, first I would like to explain the concept of a right in the common law. Then I will explain the concept of rights in the Sharia law. So, what does the right mean in the common law legal system? The right mean any kind of interest. As I've already told you in the class, students, that rights can be positive and can be negative. Sorry, interest can be positive and interest can be negative. Only the positive interests are recognized and protected then and enforced by the state. So इंटरेस्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. अब हम हर तरह के राइट्स को जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकते. जैसे अगर मुझे कोई मुझे कोई इंटरेस्ट लग रहा है दैट इज पॉजिटिव, बट इट इट कैन नॉट बी पॉजिटिव फॉर ऑल ऑफ यू. वो राइट जो है वो आप सबके लिए नेगेटिव हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि अगर कोई इमोरल एक्ट है, या लेट सपोज स्मगलिंग की एग्जांपल ले सकते हैं. अगर मुझे लगता है कि स्मगलिंग जो है वो एक मेरे इंटरेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग है, बट दैट डजंट मीन दैट इज अ पॉजिटिव इंटरेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. अब स्मगलिंग अगर तो स्टेट की तरफ से एक एक्टिविटी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो फिर वो तो इलीगल एक्टिविटी होगी. तो फिर वो कैसे पॉजिटिव इंटरेस्ट की कैटेगरी में फॉल कर सकता है सभी के लिए? सो उसी तरह के स्टूडेंट्स इंटरेस्ट जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड देन उनको इन्फोर्स किया जाता है थ्रू जुडिशरी. So only those interests which are positive and are in the larger interest of the public, they are first recognized by the state, then they are protected by the state in some legal statutes, and then those acts are given the protection through the court. So we can say that the rights which are recognized, protected, and enforced by the state only falls within the category of legal rights. And secondly, students rights to hain, they are of three types. That can be legal right, fundamental right, and moral right. अब इन तीनों जो है राइट्स में, राइट्स की जो काइंड्स हैं इनमें डिस्टिंक्शन है. अब जो लीगल राइट है स्टूडेंट्स, वो एनी टाइप ऑफ राइट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड, प्रोटेक्टेड, एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट आर कॉल्ड द लीगल राइट्स. लीगल राइट्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है उनको उनकी शहरियों को
डिफरेंट तरह के जो स्टैचू लॉज हैं उनके अंदर दी गई है. लेट सपोज इफ आई वांट टू मेक एन एग्रीमेंट विद समवन, so I am legally eligible to enter into an agreement with any person because I am above 18 years old. मैं लॉ की जो एक कंडीशन होती है कि 18 अबव होना चाहिए, सेन होना चाहिए, और एक लीगल कंटेंट जो है और लीगल कंसिडरेशन के साथ जो है मैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकती हूँ किसी के साथ भी. सो मैं वो कैटेगरी जो है उसके अंदर फॉल करती हूँ जहां पर हम स्टेट की तरफ से ऑथराइज हैं कि हम एग्रीमेंट कर सकते हैं. सो ये हुए लीगल राइट. देन दैट देयर इज अनदर सेट ऑफ राइट दैट आर फंडामेंटल राइट्स. अब जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स का मतलब है एनी राइट दैट इज रिकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स को एक डिफरेंट उनकी कैटेगरी होती है. जब राइट्स को रिकग्निशन एंड प्रोटेक्शन मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उस तरह के राइट्स को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. Then a third type of right are the moral rights. Moral rights are those rights which are recognized by the society, but they are not get the protection and enforcement security from the state. क्योंकि morality जो है that is a subjective approach that varies from person to person, from place to place, and from society to society. अब स्टेट जो है वो मॉरल राइट्स की एप्लीकेशन नहीं करती, उनको उनको इन्फो प्रोटेक्शन नहीं देती, क्योंकि ये इखलाकियात के वो तमाम मामलात हैं जो हम सब ने एक दूसरे के साथ जो है वो ठीक रखने और एग्जीक्यूट करने. सो स्टेट हैज नथिंग टू डू विद द मॉरल राइट्स. स्टेट्स आर ओनली कंसर्न विद लीगल एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स. So this was the concept of right under the common law. But when it comes to the Islamic state or Islamic concept of legal rights, then we can say that in Islam the concept of human right is essentially based on the idea of human dignity and equality of mankind. जब हम स्टूडेंट्स शरिया के अंदर बात करते हैं कि एक राइट क्या है, तो राइट जो है एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स जो कि शरिया में एक रिकग्नाइज कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको रिकग्निशन किस बात पे मिलती है? इंसान की डिग्निटी, वकार पे और बराबरी पे. इंसान की बराबरी और वकार जो है, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड जो है, ये दोनों आइडियाज हैं जिनके बेस पर इस्लाम में लोगों को हकूक जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं. Rights with regard to the person of inheritance are principally classified by the Mohammedan jurists into the rights of Allah and rights of men. अब बेसिकली जब हम शरिया लॉ की बात करते हैं तो वहां पर एक कैटेगरी ये भी आती है एक राइट्स ऑफ मेन की और एक राइट्स ऑफ अल्लाह. जब मैंने आपको राइट्स एक्ट्स एंड ऑब्लिगेशंस पढ़ाया था मिड टर्म टॉपिक, आई टोल्ड यू that there are the different categories of the rights. Certain rights are belong to Allah Almighty and certain rights are belong to the humans, individuals, men. अब इसमें जो है जैसे हकूक अल्लाह और हकूक इबाद हैं. हकूक अल्लाह हैं वो हम पे फराइज हैं, वो चीजें जो कि वी आर बाउंड टू परफॉर्म. बट व्हेन इट कम्स टू द हकूक इबाद, देन दीज आर दोज rights which we are obliged to fulfill towards one another. Then another slide deals with the meaning of the rights. Right is a power or privilege to which a person is justly entitled by law. राइट जो है वो एक ऐसा जो है स्टूडेंट्स एक पावर होती है, एक आपको एक एडिशनल प्रिविलेज जो है मिलता है जो कि हर इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी स्टेट की तरफ से मिलता है. स्टूडेंट्स हर स्टेट जो है, स्टेट्स जो होती है वो हमारे हकूक की जामिन होती है. हम जब मैंने आप लोगों को पहले भी ये एक लेक्चर में इस बात का एक कनेक्शन जो था वो बिल्ड करने की कोशिश की थी दैट रिलेशनशिप ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड. ये जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का जो रिलेशनशिप होता है ये पैरेलल बेसिस पे चलता है. जहां पर हमें को राइट स्टेट प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से हम पर पैरेलल ड्यूटी इंपोज होती है कि हमने उस ड्यूटी को परफॉर्म करना होता है.
इसी तरीके से शरिया में भी जो है हमें कुछ हकूक दिए गए हैं, बट ऑन द अदर हैंड हम पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की जाती है कि हमने उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, हमने उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। जब तक हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेंगे तो हम पर जो है वो पनिशमेंट्स जो हैं वो लागू हो जाती हैं समटाइम्स। Definition. In simple words, rights are the common claims of people which every civilized society recognizes as essential claims for their essential development and which are therefore enforced by the state. अब राइट्स जो हैं अगर हम उनको सिंपल वर्ड्स में जो हैं वो बात करें तो ये वो कॉमन क्लेम्स हैं जो हर सिविल सोसाइटी के सिटीजन्स जो हैं वो करते हैं और वो क्लेम्स जो हैं वो वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो है स्टेट्स टाइम बाय टाइम डिफरेंट स्टेप्स लेती है, डिफरेंट इकदामात करती है कि उन स्टेप्स को इंश्योर किया जाए। जैसे हमारा है एक राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 9 of the Constitution of Pakistan 1973 states that every citizen of the Islamic Republic of Pakistan shall have a right to life and liberty save in accordance with the law. अब ये बेसिकली तो ये राइट एक डेढ़ लाइन के एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है और लगता है कि बहुत सिंपल सी बात है, बट ये वो राइट है जो कि जिसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ब्रॉड की जाती है बिकॉज द वर्ड लाइफ was not explained before. On the basis of a case law, Shalazia versus Wabda authorities, it was explained in that case that word life, when it comes to the humans, does not mean we're vegetative or animal life. The requirement of human life is far different from animals and plants. अब ये जो वर्ड लाइफ था इसको एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दी गई, एक्सप्लेन किया गया कि जिंदगी की जब हम बात करते हैं तो जिंदगी का मतलब इंसानों और जानवरों की तरह की जिंदगी नहीं है। इंसान का अशरफुल मखलूकात का स्टेटस है और उसी स्टेटस की बिना पर इंसान जो है वो डिजर्व करता है कि उसको जिंदगी का एक प्रॉपर मेयार जो है वो प्रोवाइड किया जाए। सो इसी बेसिस पर वर्ड लाइफ जो था उसको इंटरप्रिटेशन दी गई। और ये वो तमाम राइट्स हैं जो हर स्टेट में स्टेट जो होती है वो कुछ सिटीजन्स होते हैं वो क्लेम करते हैं और उन क्लेम्स की बेस पर स्टेट क्या करती है, उन क्लेम्स को रिकॉग्नाइज करती है, फिर उसको प्रोटेक्शन देती है। अब प्रोटेक्शन कहाँ देगी? प्रोटेक्शन किसी न किसी लीगल डॉक्यूमेंट में देगी या कॉन्स्टिट्यूशन में देगी और फिर उसके बाद जब वो राइट्स वायलेट होंगे तो उन राइट्स को वायलेशन से बचाने के लिए या अगर वायलेशन हो भी गई है तो उस वायलेशन की इन्फोर्समेंट करवाई जाती है थ्रू कोर्ट्स। जुडिशरी जो है फिर वो हकूक की जामिन होती है। काइंड्स ऑफ राइट्स। फर्स्ट इज पब्लिक राइट। Public rights are also called rights of Allah, matters which are purely the rights of Allah and involve benefit to men generally are public rights. अब स्टूडेंट्स जब हम पब्लिक राइट्स की बात करते हैं तो ये वो तमाम राइट्स हैं जो कि क्लेम किए जाते हैं एज अ पब्लिक राइट्स की वो तमाम के तमाम राइट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात के साथ। ये वो तमाम मैटर्स हैं जो कि दैट आर एसोसिएटेड विद अल्लाह ऑलमाइटी ओनली एंड आर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। अब ये क्या है, ये वो तमाम राइट्स हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात से मुंसलिक हैं। इंसान जो हैं उन्होंने इन राइट्स को पूरा करना है और ये कहीं न कहीं इंसानों के अपने ही बेनिफिट जो है उसके लिए ये उनको दिए गए हैं और इस तरह के राइट्स को कहते हैं पब्लिक राइट्स। नेक्स्ट इज प्योर वर्शिप। प्योर वर्शिप इंक्लूड्स, अब ये जो आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है कैटेगरीज हैं पब्लिक राइट्स की। अब ये जितने 4 से 5 राइट्स आगे मैं फर्दर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ये तमाम के तमाम राइट्स जो हैं ये पब्लिक राइट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। फर्स्ट इज प्योर वर्शिप। प्योर वर्शिप इंक्लूड्स बिलीफ इन अल्लाह, प्रेयर, zakat,
fasting, hajj, and jihad, etc. और जब हम प्योर वर्शिप की बात करते हैं तो ये वो जो हैं वो उनमें राइट्स आते हैं जो कि अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर जो है वो पक्का ईमान जो है उनसे रिलेटेड है। नमाज जो है उसकी अदायगी है, ज़कात देना है, रोज़े रखना है। फ़र्ज़ रोज़े, नफ़ली रोज़े जो होते हैं वो फ़र्ज़ नहीं होते, वो आप जो है एक एडिशनल इबादत जो है उसकी जो है कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हुए वो करते हैं। फिर हज और फिर जहाद। ये वो फ़रीज़े हैं मुसलमानों को जो कहा गया है कि वो उन्होंने टाइम बाय टाइम इनको परफ़ॉर्म करते रहना है। सो दीज़ आर दोज़ राइट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द अल्लाह ऑलमाइटी एंड दे आर फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ द पीपल। ये वो पब्लिक राइट्स हैं जो कहीं न कहीं इंसान की अपने फलाह व बहबूद के लिए, उसकी अपनी भलाई के लिए जो है वो बनाए गए हैं। वो इन राइट्स को परफ़ॉर्म करता है और इनको परफ़ॉर्म करते हुए बहुत आसानी से फलाह पा सकता है। Next is pure punishment. These are the hudud punishments that have been instituted as determinants as pure rights of Allah. अब ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया था कि एक हदूद होता है और एक ताज़ीर होता है। पनिशमेंट्स का एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। हर शरिया जो है, हर जो लीगल सिस्टम है, उसके अंदर पनिशमेंट का एक अपना मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। चाहे वो कॉमन लॉ हो, चाहे सिविल लॉ लीगल सिस्टम हो या फिर शरिया लॉ हो, शरिया लीगल सिस्टम हम कह सकते हैं हो। क्योंकि कोई भी सिस्टम जो है वो पनिशमेंट्स के बगैर, सैंक्शंस के बगैर, सज़ाओं के बगैर वो अधूरा है। क्योंकि इंसान जो है वो बगावती है बाय नेचर। इंसान के बिहेवियर को यूनिफ़ॉर्म करने के लिए, एक जैसा करने के लिए एक वी ऑलवेज़ नीड स्पेसिफिक मैकेनिज़्म ऑफ पनिशमेंट्स जो बेसिकली क्या करता है, जो बेसिकली इंसान के बिहेवियर को जो है वो अमेंड करता है और यूनिफ़ॉर्म रखता है अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उसके बिहेवियर को रखता है। सो कॉमन लॉ में अगर हम बात करें क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है दोनों सिस्टम्स फॉलो करता है एट द सेम टाइम शरिया लॉ भी और कॉमन लॉ लीगल सिस्टम भी फॉलो करता है तो ताज़ीरात जो हैं ताज़ीरें जो हैं यानी ताज़ीरात जो हैं वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है एक कॉमन लॉ से इनहेरिटेड बट व्हेन इट कम्स टू द हदूद तो हदूद वो जो है वो एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है सजाओं का जहां पर एक लिमिट लगती है हद लगती है जब मुसलमान कोई ऐसा एक्ट कमिट करें जो कि गुनाह जहां पर हद लग जाए उसके आगे गुनाह कबीरा शुरू हो जाए जब मुसलमान ऐसा कोई एक्ट कमिट करेंगे तो ऐसे एक्ट को जो है अमेंड करने के लिए उस पर्सन को जिसने कमिट किया है वॉयलेटर को ऑफेंडर को पनिशमेंट दी जाती है अंदर हदूद लॉज अब वो हदूद लॉज जो हैं ये बेसिकली अल्लाह ताला के वो अहकामात जिनको अल्लाह ताला ने दिए कि इन कामों को करने से परहेज करना है स्ट्रिक्टली परहेज करना है इनफैक्ट अगर इंसान ऐसा कोई काम करते हैं तो उनको जो सजाएं दी जाती हैं वो आती हैं हदूद लॉस की पनिशमेंट्स की कैटेगरी में देन टैक्सेस worship in which there is an element of financial liability अब ये वो हैं ये वो तमाम इबादात हैं जिनमें मुसलमानों पर एक फाइनेंशियल लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि उन्होंने इन फाइनेंशियल लायबिलिटीज को पूरा करना है अपनी इबादात के साथ अपने माल में से अपने माल को पाक करने के लिए अपने माल में से कुछ जो है फाइनेंसेस वो निकालने हैं और उन फाइनेंसेस का एक स्पेशल हिस्सा जो है वो जो मुस्तहिक लोग हैं शरिया के अकॉर्डिंग उन मुस्तहिक लोगों को उन उस माल में से जो है वो हिस्सा अता करना है हिस्सा देना है सो इस तरह के जो है राइट्स जो हैं वो कहलाते हैं टैक्सेस की कैटेगरी में फॉल करते हैं देन इंडिपेंडेंस दोज laid down initially as rule those which are associated with the initial rule अब ये जो है बेसिकली ये वो जो है इंडिपेंडेंस
ये वो हैं जो कि लिखे गए इनिशियल रूल्स के साथ जो है एसोसिएट किया गया जिनको, जो कि आप जो हैं जब अपने तमाम फ़राइज़ जो हैं जो कि मुसलमानों के फ़राइज़ में जो चीज़ें कैटेगरी जो उनको एक्ट्स कहे गए हैं परफ़ॉर्म करने हैं एज़ अ पार्ट ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस, ये बेसिकली उनके साथ जो है एसोसिएटेड हैं। Then another set of public right is liability. This is assure the 10% charge levied on the produce of the land. अब ये स्टूडेंट्स वो उन राइट्स की कैटेगरी में फॉल करता है जिसको हम अशर की कैटेगरी में लाते हैं कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी को किसी लैंड को परचेज करेंगे तो उसका जो होगा 10% जो होगा चार्ज जो उसके ऊपर लगेगा वो आप पे लाइबिलिटी है दैट यू आर बाउंड टू पे द 10% चार्ज ऑन द प्रोड्यूस ऑफ अ लैंड। अब ये वो वाली कैटेगरी है जो कॉन्सिक्वेंटली परफॉर्म होनी है फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, क्योंकि पब्लिक राइट्स की कैटेगरी में फॉल करता है और पब्लिक राइट्स में वही तमाम राइट्स हैं जो कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ एसोसिएटेड हैं और इंसानों के बेटर लार्जर इंटरेस्ट जो है उसके अंदर ये राइट्स परफॉर्म किए जाते हैं। Then we have another set of public rights, that is imperfect punishment. This type is prevention from inheritance in case of murder. अब बेसिकली ये वो तमाम जो हैं उस तरह के पब्लिक राइट्स हैं कि जब आपने इनहेरिटेंस में से आपको हिस्सा अगर कोई अपनी ही फैमिली में किसी का को मर्डर कमिट कर देता है और वहीं उसका एक इनहेरिटेंस का भी राइट जो है वो क्रिएट होता है, सो एट द सेम टाइम उसको उस इनहेरिटेंस में ही विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन केस ऑफ मर्डर कमिटेड बाय हिम टुवर्ड्स हिज फैमिली। सो इस तरह की पनिशमेंट जो है उसको इम्परफेक्ट पनिशमेंट कहा जाता है क्योंकि पनिशमेंट तो बेसिकली मर्डर की मर्डर है, बट इस केस में क्या किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ द शरिया पनिशमेंट ही हैज बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ इनहेरिटेंस इफ ही हैज कमिटेड द मर्डर। Another right is vacillating between worship and penalty. These are the act of expiation made for different reasons. अब ये वो तमाम जो एक्ट्स हैं विच आर एक्चुअली दे हैव टू they make the part of the acts of expiation made for the different reasons. अब ये different reasons हैं जिनकी वजह से एक vacillating kind of relationship build होता है between worship and penalty. Worship और पेनल्टी इबादत और सजाओं के बीच में जो है एक उस तरह के जो अगर आप कोई एक्ट्स परफॉर्म करते हैं तो फिर आपका जो राइट जो है वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। Then we have the second type of or category of the rights that deals with the private rights. So one by one, I would like to discuss all those rights with you. So I will start with the definition of the private rights. These private rights are also called rights of an individual matters, which are entirely the rights of an individual man are called the private rights. अब स्टूडेंट्स ये वो तरह के मामलात हैं जैसा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स, राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सोनम। अब राइट्स इन रेम जो थे somehow they falls within the category of the public rights, but when it comes to the private rights, so they falls within the category of rights in personam। ये वो राइट्स हैं जो पर्सन टू पर्सन हैं, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का जी के साथ, जी का एक्स के साथ, एस का टी के साथ। अब ये वो क्या हैं, ये वो बेसिकली रिलेशनशिप्स हैं
जिनकी बेसिस पर, यानी वो दे कैन बी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स on the basis of which there might be a possibility that two person came into an agreement, and one of them is the violator of that agreement. So the other party, who is the aggrieved party, will go to the court for the enforcement of that agreement. So these are the private rights which are between the private individuals. ये वो तमाम मामलात हैं जो कि पब्लिक राइट्स की कैटेगरी में नहीं फॉल करेंगे, पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि इंडिविजुअल्स के पर्सनल मैटर्स के लिए बनाए गए हैं. First is pure rights of individuals. There are certain matters. अब स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर वन थिंग, कि ये जो अब आगे जो मैं राइट्स स्टडी करूंगी एक एक करके, ये बेसिकली जो हैं हमारे प्राइवेट राइट्स हैं, सब की सब कैटेगरीज हैं. सो फर्स्ट इज प्योर राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. देर आर सर्टन मैटर्स विच आर इंटायरली द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. अब वो कहते हैं कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो कि लोगों के टोटली जो होते हैं पर्सनल इंडिविजुअल मैटर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बी विद बी, so the rest of the world has no concern with the agreement that has been signed between myself and B. This is only a matter that is going to be executed between myself and B. So pure rights वो होते हैं जो individuals के अपने personal rights हैं, जो सिर्फ उस पर्सन और उस दूसरे पर्सन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने इंटेंशनली उस एग्रीमेंट को किया. Mixed rights of Allah and men. There are certain matters in which rights of Allah and men are combined, but the rights of men, that is private right, is dominant or superseded. अब ये वो मैटर्स होते हैं जिनमें आप जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी वी कैन से दैट कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कि अल्लाह ताला के साथ भी आपके मुंसलिक होते हैं, और यानी हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल बात का मिक्सचर होते हैं. बट कहीं ना कहीं जो है हम ये पढ़ते हैं, सुनते भी हैं कि हकूक अल्लाह की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद की इंपॉर्टेंस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दी है. अल्लाह ताला जो है वो गफूरुर रहीम है, अपने बंदों को माफ करते हैं, माफी का दरवाजा खुला रखते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द हुकूकुल इबाद, सो इट हैज बीन सेड दैट वो राइट्स जब तक जिनके साथ ज्यादती नहीं की, जिनके साथ ज्यादती की होगी, यानी जिनका इंसानों के राइट्स हमने वायलेट किया होगा, जब तक वो इंसान हमें माफ नहीं करेंगे, वो राइट्स माफी के काबिल नहीं होंगे. सो दिस बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन हुकूकुल एंड हुकूकुल इबाद. And in this case, somehow it has been said that the people should concentrate on both the rights, but इंसान जो हैं उनके राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो माफी के काबिल नहीं होंगे तब तक आप उन्हीं लोगों से उसकी माफी ना मांगे जिन्होंने आपको, जिनको आपने हर्ट किया. Independent rights. These are those rights which impose no obligation on a particular individual, although it is the duty of everyone not to infringe it. अब ये बेसिकली वो राइट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट राइट्स हैं, ये किसी भी इंसान के साथ जो है वो एसोसिएटेड नहीं है. ये हर इंसान का अपना अपना एक डोमेन ऑफ राइट है. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ फ्रीडम or I have a liberty or freedom to move everywhere. Nobody can interfere in my freedom. That freedom is not attached with anyone else, but there is not a specific liability on a specific person, but the liability is over general public that they are not supposed to infringe my right. मेरे पास एक राइट है आजादी का कि मैं आजादी से घूम सकती हूँ कहीं भी. अब किसी के साथ बेसिकली एसोसिएटेड राइट नहीं है, मतलब कोई मेरे इस राइट पे, किसी पे ड्यूटी नहीं है कि मेरे इस राइट को वो इन्फोर्स करें, बट स्टिल एक जनरल ड्यूटी जो है वो लोगों पर एग्जिस्ट करती है कि वो किसी के भी राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे. Another is dependent right.
These are those rights which require an individual to discharge the obligation on to another person. Students, this kind of right is basically associated with other persons. Like these rights are those rights which are connected with other persons, and the duty or obligation or liability lies on some other person to fulfill that duty. अब इसको थोड़ा सा इस तरह समझें कि ये वो राइट्स हैं जो डिपेंडेंट राइट्स हैं, एक इंडिविजुअल के दूसरे के साथ एसोसिएटेड राइट है। अब वो पर्सन जो है जब अपनी ड्यूटी को निभाएगा तो इसका मतलब है उसने इसके राइट की यानी हकूक की पासदारी की, और एक्चुअली ड्यूटी जो है वो दूसरे पर्सन पे जो है वो इम्पोज होती है कि जहां किसी का राइट होगा वहां किसी की ड्यूटी होगी, जहां दूसरे का राइट होगा वहां किसी और की ड्यूटी होगी। सो दैट इज द रिलेशनशिप दैट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड डिपेंडेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लोगों पे जो है वेरी करता है ये रिलेशनशिप पर्सन टू पर्सन। जिसका जिसके साथ रिलेशन होगा उस पर उससे उसके राइट्स से रिलेटेड रिलेशन होगा, उस पर उसकी लायबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी कि उसने उसके राइट को पूरा करना है। Then we have another set of mechanism that is basic human rights. First is right to safety. The right to safety and security of life is the fundamental human right. अब राइट टू सेफ्टी जो है वो स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल मतलब ह्यूमन राइट है, जो कि एक हर इंसान जो है पूरी दुनिया में रहने वाले जो ममालिक के जो लोग हैं उन लोगों का बुनियादी जो है हक है और इनएलिएनेबल राइट है। इनएलिएनेबल राइट का मतलब है दैट इज सपोज नॉट टू बी वायलेटेड। ये अज्यूम किया जाता है कि उस राइट की वायलेशन नहीं होगी। तो ये वो राइट है कि दुनिया में जितने भी ममालिक एग्जिस्ट करते हैं उनमें तमाम लोगों का एक कॉमन राइट है कि उनकी जो है उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, उनको हिफाजत जो है प्रोवाइड की जाए। जब मैंने आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, that is basically a theory that deals with the evolution of that deals with the human evolution। अब उसमें भी बेसिकली जो इंसानों ने यूनाइट होकर जो एग्रीमेंट्स किए थे वो एग्रीमेंट्स दो बातों पर ही तो थे। एक तो उनको लाइफ का थ्रेट था, दूसरा प्रॉपर्टी का थ्रेट था। सो दे नीडेड द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड एज वेल एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। सो दिस इज such a kind of important right that exists from the stone age period of time। इंसानों ने भी उस दौर के टाइम इंसानों ने भी बेसिकली ये एग्रीमेंट्स इसी वजह से किए थे कि वो अपने हकूक जो सेफ्टी जो है वो डिमांड कर रहे थे। तो ये जो है राइट ये बेसिक राइट है दुनिया में तमाम भी जो लोग हैं उन सबको, और स्टेट्स की जिम्मेदारी है कि उनको सिक्योरिटी मुहैया करें। सेकेंड, राइट टू प्रॉपर्टी। इस्लाम अलाउज एन इंडिविजुअल टू एक्वायर प्रॉपर्टी थ्रू लॉफुल मीन्स। अभी जो राइट टू प्रॉपर्टी भी जो है स्टूडेंट्स वो तमाम लोगों का एक मुश्तरका मुश्तरका तो नहीं हम कह सकते, एक कॉमन राइट है, कॉमन फंडामेंटल राइट है। ह्यूमन राइट्स में एग्जिस्ट करता है कि हर इंसान जो है उसके पास एक बुनियादी हकूक है कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर करे, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन द प्रॉपर्टी शुड बी एक्वायर्ड थ्रू द लॉफुल मीन्स। जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1973 का, उसमें भी स्टूडेंट्स मुल्क के शहरियों को एक बुनियादी फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है उसमें कि मुल्क के जो शहरी हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, उनके पास एक फंडामेंटल राइट है कि वो कभी भी किसी भी टाइम जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, बट वो प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे लॉफुल मीन्स के थ्रू। वो तमाम मीन्स जो है उनको वो फॉलो करेंगे जो कि स्टेट्स ने उनको कायम करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Islam guarantees religious freedom to every individual। अब ये बेसिकली एक ह्यूमन राइट भी है और एक फंडामेंटल राइट भी है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज इंश्योर की जाती है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़, मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाता है। इसी तरीके से इस्लाम भी जो है, अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री को देखें तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक का दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने एक तो आम माफ़ी का ऐलान किया, दूसरा उन्होंने वहाँ की जो अक़लियतें थी उनको एक
मज़हबी जो थी वो एक तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया। सो ये जो है, ये जो माइनॉरिटी राइट्स अगर हम ट्रेस करते हैं तो इसकी रूट्स तो हमें इस्लाम से मिलती हैं। इस्लाम जो है वो गारंटी करता है और रिलीजियस फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड करता है तमाम इंडिविजुअल्स को। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ राइट दैट इज़ द पर्सनल फ्रीडम। It means that no one may be wrongfully arrested except in accordance with the laws of the state. अब ये जो है एक बेसिक स्टूडेंट्स राइट है कि किसी को भी हर इंसान जब उसको अगर अरेस्ट किया जाता है, जैसे ये तो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, शरिया पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जो है जब एक इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं हो सकते, तब आप 2 लोगों के मामले को प्रॉपरली नहीं सुन सकते। एक बंदे को सुनने के बाद आप अगर डिसीजन दे दें तो वो इंसाफ के असूलों पर मबनी बात नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 10 देखते हैं, सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, उसमें भी सेम बात, क्योंकि इस्लाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का एक इस्लामिक कैरेक्टर है। शरिया को फॉलो किया जाता है उसमें कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हो। सो दैट particular fundamental right is in line with the requirements or principles of Sharia. It states that no person shall be arrested without mentioning the grounds of arrest. अब जब उसको अरेस्ट कर लिया, उसको उसके ग्राउंड्स मेंशन करें। ग्राउंड्स मेंशन कर दिए तो फिर उसको राइट टू काउंसिल दें। राइट टू काउंसिल दे दिया तो उसको 24 घंटे के अंदर-अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करें। तो ये तमाम जो राइट्स हैं वो हर मुल्क में रहने वाले शहरियों के बुनियादी, बेसिक और इनवायलेबल राइट्स हैं, जो कि दे आर इंटाइटल्ड टू एक्वायर। इस इन तमाम जो राइट्स हैं उनकी उनको आज़ादी होनी चाहिए। Then another right is freedom of thought and expression. It means that freedom of speech, freedom of opinion to criticize the policies of the government. अब स्टूडेंट्स ये वो राइट है जो मुल्क के शहरियों को एक बेसिक हक देता है कि मुल्क के तमाम शहरियों को एक राइट है, बेसिक राइट है कि वो हर तरह की राय का इजहार कर सकते हैं। दे हैव अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, दे हैव अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कि वो हर तरह का क्रिटिसिज्म जो है वो कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के टूवर्ड्स, गवर्नमेंट के लॉज के टूवर्ड्स, बट एट द सेम टाइम दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट. This right is subject to certain limitations and those limitations are to be imposed by the state. अब वो स्टेट जो है वो ये कहती है कि आपके पास राइट है, आप अपना इजहार कर सकते हैं, आप अपने ख्यालात बयान कर सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, आप मुल्क की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट वन थिंग you have to keep in your mind that you are not allowed to make the hate speeches, you are not allowed to make the speeches that arouse the or create the sectarian violence, you are not allowed to make the hate speeches against integrity of the state, you are not allowed to make any speeches that are against the two nation theory of the state. अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमने जिन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते रहते इस हक को जो है वो डिमांड करना है स्टेट से. Then another is right to equality. Islam has conferred equal rights to all human beings. अब ये जो है राइट टू इक्वालिटी जो है ये एक बेसिक राइट है जिस पे हमारा मजहब की बुनियाद है. हमारा मजहब जो है वो बात ही एक्चुअली करता है इक्वालिटी की. किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अजमी को किसी अरबी पे जो है वो फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, बढ़तरी हासिल नहीं है. बट हमें अगर बढ़तरी हासिल है तो वो तकवा की बिना पर है, एक अच्छा मुसलमान होने की बिना पर है. सो ये बेसिकली है जो एक मैसेज देता है कि इस्लाम हमेशा की इक्वालिटी की बात करता है. और वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल बयान करता है दैट इक्वालिटी फॉर सिटीजन. पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरियों को इक्वालिटी जो होगी वो मुहैया की जाएगी. Then another right is right to basic needs. It is the responsibility of the state to provide the basic necessities to every individual. अब ये हर स्टेट जो है स्पेशली शरिया लॉ जो है उसमें ये एक बात की जाती है कि जो एक स्टेट जो है, रियासत जो है, रियासत की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि अपने मुल्क में रहने वाले अपने लोगों को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए तमाम जो बेसिक ज़रूरियात जो हैं मुहैया की जाएं.
जैसे मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बताया कि वर्ड लाइफ वाज नॉट इंटरप्रेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, but further it was interpreted, or rather they should say it was given a liberal interpretation by saying that इंसान की जो रिक्वायरमेंट्स है जिंदगी की वो जानवरों और पौधों से टोटल डिफरेंट है। इंसान को वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की जाएँ ताकि वो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गुजार सके। राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्क। In Islamic State, every individual has a right to choose his profession and source of income. पाकिस्तान में जो है वो तमाम शहरियों को ये एक बेसिक राइट प्रोवाइड किया जाता है और शरिया में भी प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन जो है या अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो चूज कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि जो वो प्रोफेशन चूज करें उससे रिलेटेड जो उसका कंटेंट जो होगा वो पॉजिटिव हो। दैट शुड नॉट बी लीगल। किसी भी इलीगल काम से रिलेटेड वो बिजनेस नहीं कर सकते। पाकिस्तान के तमाम शहरियों को फंडामेंटल राइट मुहैया किया गया है कि वो हर तरह का बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट बिजनेस should not be declared illegal by the state of Pakistan. Now, I would like to conclude the whole topic that private rights are those rights which are attributed to the particular individual, and on the other hand, public rights are those which are involved the benefit to the community at large. आज जब हम इसको कंक्लूड करने की तरफ आते हैं तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि देयर आर टू बेसिक कैटेगरी ऑफ द राइट्स। फर्स्ट, आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, then I have explained the concept of positive rights and negative rights. Then I told you that only positive interests are recognized and they have given the protection in the legal documents, then they are enforced by the state. So पॉजिटिव इंटरेस्ट जो है उन्हीं को सिर्फ लीगल राइट बनाया जाता है। फिर मैंने आपको डिफरेंट कैटेगरीज बताई लीगल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की, फिर मॉरल राइट्स की। उसमें से हमने कुछ शरिया लॉ से रिलेटेड जो राइट्स थे वो पढ़े, पब्लिक राइट्स एंड प्राइवेट राइट्स। पब्लिक राइट्स वो थे जो कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ एसोसिएटेड हैं बट पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए। उसमें जो नेसेसरी राइट्स थे, ऑब्लिगेशंस थी, वो हमने डिस्कस की, पनिशमेंट्स जो थी दूध के सेंस में हम डिस्कस की। फिर हमने ये भी पढ़ा कि कुछ फाइनेंशियल मैटर्स हैं जिनके बारे में जो है लोगों को, मुसलमानों को हिदायत दी गई दैट दे आर बाउंड टू परफॉर्म दोज फाइनेंशियल एक्शंस और एक्ट्स। फिर उसके बाद हमने प्राइवेट राइट्स को डिस्कस किया। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि प्राइवेट राइट्स क्या होते हैं। प्राइवेट राइट्स जो है राइट इन रेम की कैटेगरी में फॉल करते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं और इंडिविजुअल्स के प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप्स पे बेस्ड करते हैं। इन केस ऑफ देयर वायलेशन द एग्रीव पार्टी कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दैट राइट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया बेसिक ह्यूमन राइट्स। बेसिक ह्यूमन राइट्स मैंने बताया कि ये वो होते हैं जो बहुत ही बेसिक एंड इनवॉल्युनेबल राइट्स होते हैं, कंसिडर किया जाता है कि ये वायलेट नहीं होंगे, बट जब ये वायलेट होते हैं फिर इनको वायलेशन के बाद इनकी इन्फोर्समेंट से रिलेटेड मैकेनिज्म एक अलग है। उसमें हमने राइट टू लाइफ पढ़ा, राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ा, राइट टू सेफ्टी पढ़ा, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट पढ़ा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ा, फ्रीडम टू कैरी एनी काइंड ऑफ बिजनेस पढ़ा। अब ये वो तमाम राइट्स हैं जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक उसका, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है दैट फॉलोज एन ऑफिशियल रिलीजन दैट इज इस्लाम, सो इट इज ऑब्वियस that there shall be no legislation which is against Quran and Sunnah। अब इस चीज को फॉलो करने के लिए स्टूडेंट्स पाकिस्तान के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक इस्लामिक कैरेक्टर जो है वो एक एग्जिस्ट करता है। उसका में बेसिकली बात की जाती है दैट सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द अल्लाह ऑलमाइटी। हम जो हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह अपनी बताई गई ड्यूटीज को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जो है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब उसमें फिर डिफरेंट तरह के राइट्स आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, उसमें ये भी आ जाता है कि हमें अपने हकूक अल्लाह और हकूक इबाद का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमने कुछ राइट्स जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ है हमारे, हमने उनको पूरा करना है। हम उनको पूरा नहीं करेंगे तो हमें डिफरेंट तरह की पनिशमेंट्स होंगी, वो मिलेंगी। लेकिन हकूकुल इबाद जो हैं उस पर काफ़ी स्ट्रेस दिया गया है कि ये वो तमाम हकूक हैं जो एसोसिएटेड है इंसानों के साथ, और जब तक इंसान जो है इनकी माफ़ी नहीं करेंगे तो उनकी माफ़ी जो है वो नहीं हो सकती। तो हमें इन तमाम हकूक की जो है वो
रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंसानों पर है कि इन तमाम हकूक़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। अदरवाइज जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है फिर वो स्टार्ट हो जाता है, उसमें भी फिर गुनाह कबीरा एंड गुनाह सगीरा की कैटेगरी आती है, जहाँ पर गुनाह कबीरा लगेगा कमिट होगा, वहाँ पर फिर हदूद लॉज लगेंगे, वहाँ पर ताज़ीरात नहीं लगती हैं। सो ये जो है ये वो बेसिक डिस्टिंक्शंस थी, कैटेगरीज थी जो हमने डिस्कस की। आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स ये लेक्चर समझ आ गया हो। आई विल अपलोड दिस लेक्चर इन योर गूगल क्लासरूम। स्टिल इफ यू हैव any question, feel free to ask through email or through your CR. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, stay at home and stay safe. और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।